محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین۔ اصدق اور صادقین مانے سچ بولنے والے، اور اصدق مانے سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ ٹھیک ہے، عربی گرامر اور قانون کے حساب سے ہاں وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گرمی لگے گی کوئی دقت نہیں ہے، ڈسٹرب ہوگا اس سے ان کو۔ اصدق کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے محبوب یار، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ یہ جو دوسرا شعر پڑھا میں نے اور اس سے پہلے جو پڑھا، دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ یہ کتنا آسان ہے، وہ کتنا ہارڈ ہے، کیسا خوبصورت لفظ ہے اس میں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ پرواز جتنی اونچی ہوگی یا جتنا ہی جانکاری ہوگی اتنے تو آپ بول پائیں گے۔ تو ایک یہ بول رہے تھے کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ درود شریف آپ پڑھو تو پھر کچھ بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا بیان خلیفہ اول کے تعلق سے ہوگا، جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور اس طریقے سے آپ آج ہی جانتے ہوں گے کہ ہم کل کیا بیان کریں گے، پرسوں کیا بیان کریں گے، سب آپ کو پتہ ہوگا۔
تو آج خلیفہ اول کے بارے میں بات چیت ہوگی، ان کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، فضائل، کرامات، یہ سب باتیں آج بتائیں گے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، انبیاء کے بعد افضل البشر ہے، وہ بھی بالتشکیک نہیں بالتحقیق ہے، یقین کے ساتھ، شک کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے، یقیناً ایگزیکٹلی کنفرم، جہاں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، وہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو جو میں نے آیت تلاوت کی، اعلیٰ حضرت بھی بول رہے ہیں کہ اصدق الصادقین، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ سچے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو لے کے آئے، وہ جو سچائی لائے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہ دو الگ الگ ہیں۔ والذی جاء بالصدق کوئی اور ہے، وصدق بہ کوئی اور ہے، دیکھ رہے ہیں دو لفظ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لائے، اور سچائی لانے والے مصطفیٰ ہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سچائی لانے والا کون ہے؟ دیکھو یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں یہاں ہوں گے، جاء یجی کا معنی عربی میں آنے کے ہوتے ہیں، اور اس کا صلہ جب دے آ جائے تو لانے کا ہوتا ہے، تو معنی متعدی بن جاتا ہے، پھر وہ لانا ہو جاتا ہے۔ تو وجاء بالصدق مطلب جو سچائی کے ساتھ آئے، یعنی سچائی کو لے کے آئے۔ گرامر عربی اصول ضابطے ہیں نا، سچائی لائے تو سچائی لانے والے مصطفیٰ، وصدق بہ، اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، اور تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اب میں بولوں ذرا زور سے کہہ دو، ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، جس نے اس سچائی کی تصدیق کی اور انہیں مانا سب سے پہلے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو جاء بالصدق مصطفیٰ وصدق بہ، ابو بکر صدیق، آگے قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا وصدق بہ، انہوں نے تصدیق کی، تصدیق کرنے والے، کس بات کی تصدیق کی؟ کیا انہوں نے تصدیق کی؟ کس چیز کی تصدیق کی؟ تو علماء کہتے ہیں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ قرآن سچا ہے، تو سب سے پہلے جس نے کہا میں مانتا ہوں وہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جس نے مانا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک بات اور علماء بتاتے ہیں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، معراج میں گئے، اور معراج میں جانا کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں، ایک ساتھ میں، تھوڑی دیر میں پہلے آسمان پہ گئے، یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ، وہاں سے دوسرے آسمان پہ، وہاں سے تیسرے آسمان پہ، وہاں سے چوتھے آسمان پہ، وہاں سے پانچویں آسمان پہ، وہاں سے چھٹے آسمان پہ، وہاں سے ساتویں آسمان پہ، اس کے آگے سدرہ آ گیا، اور سدرہ مکان و لامکان کی باؤنڈری ہے، وہ بارڈر، نیچے جو ہے وہ مکان ہے، اور اوپر جو ہے وہ لامکان ہے، اوپر لامکان ہے۔ ایک بات تھوڑا سا دیری تو نہیں ہوگی آپ کو، تو بات تھوڑا سا لمبی کروں، ہاں دیری نہیں ہوگی نا۔ ایک بات بتاؤ، یک ٹھو ڈھیلا جانا تھا، ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا، زمین سے ڈھیلا اٹھا کر کے اوپر پھینکو تو جب تک آپ کی طاقت اس کے ساتھ رہے گی تب تک وہ اوپر جائے گا، اور جیسے یہ طاقت ختم ہوئی تیسے پھر گھوم کے وہیں آئے گی جہاں رہا۔
बोलो है कि नहीं है? कि आप फेंकेंगे तो सीधा ऊपर ही चला जाएगा? आए नहीं जाएगा ना। आम का दरख्त देखा है? आम जब टूटता है दरख्त से तो ये बताओ कि वो टूट के ऊपर काहे नहीं जाते, नीचवा काहे गिरत है? आम का पेड़ देखा है? आम का पेड़ आम पका जब टूटा तो नीचे आता है सीधा, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? क्या चुंबक है इधर? तब जवाब ये होगा इधर चुंबक नहीं, लेकिन जिसमें वो लगा हुआ है उसकी जड़ इसके अंदर है, असल यही है, उसका मकान यही है। तो एक है मकान, एक है ला मकान। बात समझने का है। ढेला ऊपर फेंको, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, नीचे वो है बेंच है कि नहीं है, मिंबर है कि नहीं है, और मिंबर जमीन से लगा हुआ है। एक आदमी ऐसा दिखाओ कि यह कुर्सी पर लगा के बैठा हुआ है, ना नीचे वो चेक हुआ है ना ऊपर है लटका हुआ है, कोई ऐसा दिखा सकते हो? जब तक टेक है तब तक वो रुकेगा, नहीं तो गिरेगा फड़ाक से नीचे। नीचे आएगा नहीं आएगा? है कोई आदमी जो ऐसे यही लटका हुआ कुर्सी लगा के बैठा हुआ? वो नहीं रह सकता। इसलिए कि अब देखिए ये जो जमीनों आसमान के बीच में खला जगह दिख रही है, ये भी मकान है, लामका नहीं है, ये भी मकान है, मगर हवाओं का मकान है। यहाँ हवाएं रहती हैं, हवाएं लतीफ हैं, तो ये मकान भी लतीफ है। हवा लतीफ है तो उसके लिए लतीफ मकान भी है। हमारा जिस्म कसीफ है, हमारा जिस्म भारी है, तो इसके लिए मकान भी भारी चाहिए। आप हवा में नहीं रुक सकते, इसके रुकने के लिए सीधे जमीन चाहिए, जमीन में आकर के रुकेगा, वहां नहीं रुकेगा। अब देखो मेरे नबी का जिस्म है, नबी के हाथ भी है, नबी के पांव भी है, पूरे जिस्म के साथ मेरे नबी सिदरा पे गए। सिदरा पे गए, वो बाउंड्री है मकान की और लामका की। नीचे मकान है, नीचे मकान है, ऊपर लामका है, वहां से भी नबी आगे बढ़े। जिस्म मेरे नबी का है। आप अंदाजा फरमाए, जब ये जिस्म इस मकान में नहीं रह सकता तो वो जिस्म लामका में कैसे गया, जो मकान है ही नहीं है। तब आला हजरत से पूछो तो आला हजरत कहेंगे, अरे तू क्यों परेशान होता है? अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने किधर, जाने मुराद अब किधर। हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है। तू क्या समझेगा जब बड़े बड़े न समझ सके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। एक बात और बताऊं, कहते निशाने कैफो एला कहाँ था, सोरागे ऐना मता कहाँ था, न कोई राही न कोई मंजिल, कौन बताए किधर गए थे। वो मेराज की मंजिल है, कौन बता सकता है? वहाँ कैफ कैफ ऐन कहाँ क्यों कैसे, इन सब के पर जल जाते हैं, इन सब के पर जल जाते हैं। कैफ और कहाँ क्या बताएगा, जहाँ वहमो गुमान के भी पर जल जाते हैं। अर्श पे जाके, अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थके गिरा, लशा गया, और अभी मंजिलों के परे, और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है, पहला ही आस्तान है, अभी तो ना जाने कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत है। तो वो मकान ला मकान, वहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। जल्दी न करें तो कुछ और बात बता दूं, शायद कभी सुनेंगे। सुभान अल्लाह। तो जरा सा हाथ उठा के सपोर्ट कीजिए, तैयार है सुनने के लिए। ये मकान है, ये बॉर्डर है। कानून क्या है? जो लामका सिदरा के नीचे वो ऊपर नहीं जा सकता, और जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता। वो बॉर्डर है मकान और लामका का। जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकता, और जो नीचे है वो ऊपर नहीं जा सकता। जिब्रील से कहा गया अब आगे चलो, बोले बस मेरी बस है, इसके आगे नहीं जा सकता। वो कानून है, उधर वाला इधर नहीं आएगा, इधर वाला उधर नहीं आएगा। जरा देखिए तो सही, उधर वाला इधर नहीं और इधर वाला उधर नहीं। मेरे नबी ने मेराज की रात जा करके उस पार भी गए और जाके बता दिया, ए फरिश्तों, ए लोगों, तुम्हारे लिए कानून होगा, इधर से उधर नहीं जाते, उधर से इधर नहीं जाते,
सुभान अल्लाह, जाऊंगा भी आऊंगा भी, सुभान अल्लाह। गए भी और वापस भी आ गए, इसीलिए उसको मुंतहा कहा जाता है। मुंतहा, जहाँ किसी की इंतहा हो जाए तो नीचे वाले की इंतहा वो है और ऊपर वाले की भी इंतहा वही है। वो उधर से नीचे नहीं आएगा, ये इधर से नीचे ऊपर नहीं जाएगा। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। अभी आप ये बयान करने लगे तो वो छूट जाएगा। और एक बात ध्यान दे, हम चाहे जो बयान करने लगेंगे तो आप दूसरा भूल जाएंगे। ये सरकार शेर सुन्नत का करम है, कहो सुभान अल्लाह। झाड़ू लगाया है उधर, बूढ़े हो रहे, बाल सफेद हो रहे उसी दरवाजे पे, और जब इतनी उम्र हो गई खिदमत करते करते तो कुछ न कुछ तो मिलना ही है उस दरवाजे से, मिलना ही है। अल्लाह समझ अता फरमाए। अब जरा देखिए आगे क्या होता है। मेरे नबी मेराज में गए और वापस आ गए। मस्जिद अक्सा से फला जगह सिदरा पे गए, पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए। पहले आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता 500 बरस का, आसमान की मोटाई 500 बरस का रास्ता, दूसरे से तीसरे का 500 बरस का रास्ता, मोटाई 500 बरस का रास्ता, चौथे की लंबाई 500 बरस का रास्ता, पांचवें का रास्ता 500 बरस का रास्ता। इतना सब गए और जन्नत में गए, सब देखा, अल्लाह का दीदार किया और वापस चले आए। और वक्त कितना लगा, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। सुभान अल्लाह। जो वजू का पानी गिरा था अभी सही ढंग से बह भी नहीं पाया था, वापस आ गए। सुबह जब बयान करने लगे, ए लोगों, मैं मेराज में गया, मस्जिद अक्सा गया, पहले आसमान पे गया, दूसरे आसमान पे गया, तो काफिरों की बाहें खिल गई। ये कैसे हो सकता है? अबू जहल खुश हो गया, अब मौका मिला झुठलाने का। ऐसा कैसे हो सकता है? 500 बरस के जने कितना 500 बरस, ये कह रहे एक घड़ी में गया और चला आया, अब मौका मिला है, अब इनको झुठला दिया जाएगा, झुठला दिया जाएगा। लोगों से कहेंगे, कोई कबूल ही नहीं करेगा। आए अबू बकर सिद्दीक के पास, बोले आपको मालूम है? बोले क्या? बोले आपके दोस्त जो है मोहम्मद वो क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? बोले ऐसी बात का दावा कर रहे हैं कि अगर आप भी सुनोगे तो आप कह दोगे ये झूठ है, इसको हम नहीं मानेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बोलो क्या कह रहे हैं? बोले कि उनका कहना ये है, आज रात चंद एक घड़ी में, एक पल में, थोड़ी देर में, पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, पांचवें पे गया, जन्नत की सैर की, अब वापस भी आ गया एक लम्हे के अंदर। बोलो ये कैसे हो सकता है? यहाँ से बैतुल मस्जिद अक्सा ही बहुत दूर है, कैसे 2-3 महीने का रास्ता है, कैसे इतनी जल्दी आ सकते हैं? अबू बकर मुस्कुराए, बोले ये बताइए बात कह कौन रहा है? तो बोले आपके दोस्त कह रहे हैं, बोले मेरे महबूब कह रहे हैं, बोले इन्नी लाओ सब देखो बेआबाद मिन जालिक। अरे पागल, ये तो एक बात हुई, ऐसे नबी से भी बड़ी बात कहे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बेशक मेरे नबी गए और चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आई, ए अबू बकर तू सिद्दीक है, सबसे बड़ा तस्दीक करने वाला है। अब जरा देखिए अबू बकर ने इस वाक़े की तस्दीक फरमाई। अल्लाह समझ अता फरमाए। अबू बकर ने कहा, इससे बड़ी बात थी, अगर नबी कहे तो मानने के लिए तैयार हूँ, बस इतना बता दो कि मेरे आका ने कहा है। बोले हाँ। उलमा बयान फरमाते हैं कि जरा फर्क समझिएगा। मेराज के वाक़े को अबू जहल ने नबी से सुना, ज़बाने नबी से सुना और नहीं माना, और अबू बकर ने गद्दार से सुना और मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मानने वाला दिल अलग ही होता है, मानने वाला दिल अलग ही होता है। अरे यही तो है, इनके सामने चाँद 2 टुकड़े हो गया तो नबी ने कहा ईमान ले आओगे? हाँ ले आएंगे। करो तो पहले। जब कर दिया तो बोले मुझे क्या मालूम था कि आपका जादू वहां भी चल जाएगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ऐसे, लेकिन मानने वाला दिल जरा देखिए वो कहाँ था और किस तरीके से किससे सुना और मान गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी है, मान देने की जरूरत पड़ी तो मान दिया, वतन छोड़ने की जरूरत पड़ी तो वतन को छोड़ दिया,
जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी है, तुम उसके लिए भी पेश रहे हैं। आप अंदाजा करो, माल देने की जब हमारी आई, एक बार नबी ने कहा था ना ग़ज़वा तबूक के लिए कि सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के आओ, माल लाओ, यहाँ पे काम है इस्लामी लश्कर के लिए, खाने पीने का इंतजाम करना है, तलवारें चाहिए, तलवारें चाहिए। हजरत उमर के पास कुछ ज्यादा माल था, बोले आज मैं ज्यादा लेके आऊंगा और अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। गए, माल के 2 हिस्से किए, आधा रख दिया बच्चों के लिए, अब आधा लेकर के आ गए। नबी ने पूछा कितना लेके आए? बोले या रसूल अल्लाह आधा घर छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। तब तक अबू बकर भी लेते भी आते दिखाई पड़े। नबी ने पूछा आप कितना लेकर के आए हो? अल्लाह के रसूल सब ले आया, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? अब मेरे आका, उनके लिए अल्लाह रसूल को छोड़ करके आया हो। आवाज आई, कहा बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बोले अल्लाह के रसूल परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस मेरे लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, अल्लाह रसूल उनकी हिफाजत करेंगे। आप अंदाजा फरमाओ, इतने सहाबी बैठे थे, किसी ने नहीं कहा रसूल तो यहाँ बैठे हैं तुम्हारे घर पे, तुम कह लो घर पे छोड़ के आए हैं, कहा तुम्हारे घर पे है, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी ने नहीं कहा नबी यहाँ बैठे, तुम कह रहे हो घर छोड़ के आए हैं। वो जानते थे घर छोड़ के आने का मतलब नबी जहाँ भी हो, नबी का करम हर जगह होता है, नबी का करम हर जगह होता है। आप अंदाजा फरमाइए, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इतना माल दिया इस्लाम की राह में। आज हम उनके मांगने वाले, उनके चाहने वाले, अभी इसी मजलिस में ऐलान कर दिया जाए दीन के लिए आगे बढ़ो, तो आदमी खुराफात में बहुत पैसे खर्च कर देता है, लेकिन दीन के लिए पीछे हटता है। एक बखील था, वो जब मरने लगा, जिंदगी में तो कभी कुछ नहीं नेक काम किया, खैरात सदका कुछ नहीं दिया। जब इंतकाल करने लगा, कोई आ गया, बोले कि अरे अब तो कुछ दे जाओ, अब तो दुनिया से जा रहे हो, अब तो कुछ अपने हाथ से सदका खैरात करते जाओ। तो उसने कहा जान तो दे रहा हूँ, बाउर का दे दी तो हन जन्मा, अब क्या दे दे, इससे बड़ी चीज क्या होगी। वो चुपचाप जो गया था वो मुंह बना के वापस चला आया। तुमसे कहना ही बेकार है, लाद के लिए भी नहीं जा रहे हो, खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ जा रहे हो। ऐसे भी लोग होते हैं, याद रखिए हम आला हजरत के दीवाने हैं, सिद्दीक़ अकबर के चाहने वाले हैं। दीन के लिए हम कल भी तैयार थे, आज भी तन मन धन से तैयार हैं। अबू बकर के गुलाम हैं, याद रखिएगा। यही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या मकाम है इनका। एक बार चांदनी रात थी, मेरे आका आराम कर रहे हैं, हजरत आयशा भी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। ज़रा देखिए, हजरत आयशा भी हैं। हजरत आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आसमान में तारे निकले हुए थे, तो हजरत आयशा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, हल तकूनु लिअहदिन मिनल हसनाते अददा नुजूमी समा, ए मेरे आका क्या किसी की नेकियां ऐसी हैं जो आसमान के तारों के बराबर हो। मेरे आका मुस्कुराए, हाँ वो उमर की नेकियां है जो आसमान के तारों के बराबर है। इनका ख्याल ये था कि अभी नबी मेरे वालिद के बारे में कहेंगे, अबू बकर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। यही से एक ज़हन ये भी मिलता है कि हजरत आयशा का नजरिया ये था कि नबी जानते हैं कि आसमान में तारे कितने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नेकियां भी जानते हैं, वही तो जवाब दे पाएगा, वही तो जवाब दे पाएगा। नबी ने कहा उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। तब उन्होंने सवाल किया, फ़अइना हसनातो अबी बकर, फ़अइना हसनातो वालिदी अबी बकर, या रसूल अल्लाह, तो फिर मेरे अब्बू जान की नेकियां कहाँ गई, हजरत अबू बकर की नेकियां कहाँ है। नबी मुस्कुराए, बोले उमर की सारी जिंदगी की नेकी एक तरफ, अबू बकर की एक नेकी एक तरफ है। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, वो कौन सी नेकी है गार के अंदर जो हजरत अबू बकर ने कुर्बानी दिया है, उस नेकी का जवाब नहीं है। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये हजरत अबू बकर है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे नबी गुंबद खजरा नाम की एक किताब देख रहा था, उसमें देखा नबी जो है मेरे आका ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुरा दिया। अली जा रहे थे, हजरत
अबू बकर जा रहे थे, अबू बकर आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। अबू बकर ने देखा और पहले मेरे आका हजरत अबू बकर को बता चुके थे ये बात, तभी वो बोले। दोनों की जब मुलाकात हुई अली की और अबू बकर की, तो हजरत अबू बकर मुस्कुराए और बोले कि एक मुस्कुराए, तो हजरत अली ने मुस्कुराने की जब कोई वजह नहीं देखी, अरे भाई कुछ बात हो या कोई बातचीत हो गई हो या कोई कुछ हो गया हो तब मुस्कुराओ तो समझ में आता है। ऐसे उधर से आए इधर से गए, मुलाकात हुई, मुस्कुरा दिए। वो पूछ बैठे कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुराने की वजह क्या है? तब ये बोले जब तुम्हें देखा तो मुस्तफा की बात याद आ गई। क्या याद आ गया? बोले नबी ने फरमाया है जन्नत में वही जाएगा जिसको अली जन्नत में जाने का टिकट देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने का टिकट देंगे। अली मुस्कुराए और उन्होंने कहा आप भी सुन लो, नबी ने मुझसे ये भी फरमाया है, ए अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, अबू बकर की मोहब्बत होगी। आपने हमें बताया तो हमने आपको बता दिया। पता क्या चला, ना अली का कोई जवाब है ना अबू बकर का कोई जवाब है। नबी के तमाम सहाबा शान वाले हैं। आइए देखिए जरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है। इस्लाम लाने की जब बारी आई, ये मक्के में नहीं थे। जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ये तिजारत करने के लिए गए हुए थे, यमन में थे, तो वहां तिजारत कर रहे थे, कुछ सामान कपड़ा वगैरह ये बेचते थे। तो यमन में थे, वहां रुके, अपना सामान बेच रहे थे। एक शेख से मुलाकात हुई। अच्छा एक बात ये भी बता दूं मैं आपको, जब ये जा रहे थे तो एक दरख्त के साए में शवाहिदुन नबुव्वा नाम की एक किताब यहाँ हजरत के घर पे रखी है, और बड़ी मोतबर किताब है। उसमें लिखा है और दलाइलुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, मारिज तो बड़ी तफसील की किताब है, उसमें तो और भी आगे और भी कुछ लिखा होगा। अभी शवाहिद जो यहाँ मौजूद है उसके अंदर का हवाला दे रहा हूँ मैं। उसमें लिखा है जा रहे थे, रास्ते में एक पेड़ पड़ा और वहीं रुके कि थोड़ा आराम कर ले, और जैसे वहाँ आराम के लिए थोड़ा सा लेटे और टेक लगाया, तब तक एक शाख दरख्त का इनके ऊपर झुक गया। तो ये हटने लगे, ये क्या, ये तो हरा है, तंदुरुस्त है, ठीक है, ये मेरे ऊपर काहे गिरता चला रहा है, गिरता चला रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने लगा कि मैटर क्या है। वो झुका, इतने में आवाज आई, ए अबू बकर तुम मुबारक हो, एक नबी आने वाला है जिस पर तुम पहले ही ईमान लाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दरख्त ने कहा, दरख्त ने बोला तो अबू बकर बोले जब बता ही रहा है तो इतना शार्ट में का है, थोड़ा तफसील से बताओ, खोल करके बताओ। अबू बकर ने कहा। तब पेड़ से आवाज आई, सुनो वो नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। सुभान अल्लाह, जो ऐलान करेंगे। तब बोले वो तो हमारे दोस्त हैं। बोले हाँ वही ऐलान करेंगे, उन पर ले ईमान ले आना। अब तकदीर में लिखा जा चुका है सबसे पहले ईमान लाने वाले आप हो। सुभान अल्लाह। ये गए और सामान वगैरह को बेचा, यमन में बेचा, और बेचने के बाद एक शेख से मुलाकात हो जाती है। तो शेख ने जब इनको देखा तो कहा कि एक बात बताओ, आप हरम से आए हो क्या, मक्के से आए हो? बोले हाँ। बोले आपका नाम अबू बकर है? कुछ नहीं, ना कभी जान ना पहचान ना मुलाकात। बोले आपका नाम अबू बकर है? बोले हाँ। आपके वालिद का नाम अबू कहाफा तो नहीं है? बोले हाँ है। इतना काहे पूछ रहे हो, मकसद बताओ, कहाँ हो, क्या नहीं है, क्या मैटर है वो बताओ। तब बोले सारी बातें सच निकली है, बस एक बात और बाकी है, वो भी बता दो। वो बताने का नहीं, वो दिखाने का है। तो बोले क्या दिखाऊं? बोले अपना कुर्ता उठाओ, पेट देखना है, नाप देखना है। तो अबू बकर ने कहा मैं हयादार हूं, मैं नहीं उठाऊंगा, पहले मेन मैटर बताओ, क्या देखना चाहते हो? बोले हमारी किताब में लिखा है एक नबी आएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उनका नाम होगा, उन पर सबसे पहला शख्स जो ईमान लाएगा उसका फला नाम है, ऐसा ऐसा हुलिया होगा। ये हमने किताबों में देखा है अपने, और सारी चीजें आप पे सही आ रही हैं, बस एक बाकी है, उसमें लिखा हुआ है उसके नाम के ऊपर एक काला निशान होगा, वही मैं देखना चाहता हूँ। तब अबू बकर ने उठाया तो देखा काला निशान, तो उसने कहा रब्बे काबा की कसम, आप वही आदमी हो, मुझे वो आदमी मिल गया है। अब नसीहत किया, आप जाओ और
ऐलान करेंगे उन पर ईमान कबूल कर ले, ईमान ले आना, आप बड़े मुबारक आदमी हो। जब अबू बकर सिद्दीक आने लगे तो इसने कहा जा रहे हो तो मैंने उनकी शान में कुछ शेर लिखे हैं वो भी लेते जाओ। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए शायरी कब से चल रही है, कुछ शेर लिखा है वो लेते जाओ, वो ले लिया। कुछ और शेखों से मुलाकात किया। जब वहां से चले मक्का आए तो मक्के की हालत बदली हुई है। जब गए थे तब ऐसा नहीं था, लोग इंतजार कर रहे हैं। अबू जहल आ गया, सब आ गए, घेर लिए, बोले क्या बात है, बदले बदले क्यों दिख रहे हो? बोले मामला ही ऐसा है, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं उन्होंने कह दिया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, मैं किताब लेकर के आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, आप ही का इंतजार था, बोलो क्या किया जाए? आप मानोगे नहीं मानोगे? अरे नबूवत के लिए नबूवत अल्लाह को देना था, कोई नबी बन के आना ही था, तो यतीम को नबी बनाना था, किसी और घराने में नबी बन करके आता, ये कैसे नबी बन करके आ गए? ये मानने वाली बात है। तो अबू बकर ने कहा जरा सा मुझे उनसे मिलने तो दो, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बात मैंने सुन लिया, अब मैं उनकी बात सुन लूं, उसके बाद फैसला होगा। अबू बकर वहां से गए और जो है दरवाजे मुस्तफा पर पहुंचे। मेरे आका ने दरवाजा खोला मुस्कुराते हुए, और अबू बकर, और जैसे अबू बकर आए मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, मुझ पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। हजरत अबू बकर मुस्कुराए, पहले ये तो बता दीजिए जो आप कह रहे हो उसकी दलील क्या है आपके पास में, उसका सबूत क्या है आपके पास में? मैं मान तो लूंगा मगर दलील दीजिए। मेरे नबी मुस्कुराए, अब नबी ने मुस्कुरा के फरमाया यमन के शायर का शेर जेब में रख के दलील मांग रहा है, उससे बड़ी दलील क्या होगी? जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो दलील काफी नहीं है जो यमन का शेख बता गया है। याद रख, ऐलाने नबूवत मक्के में हो रहा है और उसका सबूत यमन के अंदर दिया जा रहा है, इससे बड़ी दलील क्या होगी? अबू बकर ने कहा पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाया करते हैं। जरा देखिए तो सही, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, और बात यहीं पे खत्म नहीं, तारीख है। देखिए तो तारीख जो है इनके जिक्र और मकाम व मर्तबे से माला माल है। नुज़हतुल मजालिस नाम की एक किताब लिखी गई है। कौन सी किताब? नुज़हतुल मजालिस। उसके अंदर लिखा हुआ एक औरत है, इधर आप देखिए, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने अपनी किताब में। एक औरत आई बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? मेरे घर में खजूर का दरख्त है आंगन में, और वो दरख्त गिर पड़ा, जबकि मेरा शौहर सफर पर है, मेरा शौहर अभी सफर पे, और वो दरख्त मेरे आंगन में था, गिर गया खजूर का, मैंने देखा है। या रसूल अल्लाह ये गिर गया का क्या मतलब? इस वक्त में मेरा शौहर घर नहीं है, सफर पर है। नबी ने कहा तू जा सब्र कर, अब तू अपने शौहर के साथ जिंदगी में दुनिया में कभी नहीं मिल पाएगी, कयामत में जाकर के मिलेगी। मतलब तेरा शौहर वापस नहीं आएगा, रास्ते में इंतकाल कर जाएगा, वहीं रह जाएगा, वो वापस लौट के नहीं आएगा। इसका मतलब यही हुआ तू जा सब्र कर ले, अब अपने शौहर से नहीं मिल पाएगी। वो रोती हुई गमगीन वापस लौट रही थी, रास्ते में अबू बकर मिल गए। अबू बकर जब मिल गए तो इसने वही बात अबू बकर से पूछी, मैंने ख्वाब देखा। रुकिए तो जरा, रुक गए। मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे आंगन में खजूर का दरख्त है, वो गिर गया, और मेरा शौहर सफर पे है, मुझे डर लग रहा है। और ये नहीं बताया औरत ने कि नबी से पूछ के आ रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। अबू बकर ने कहा डर किसका, तू घर जा, शाम को तेरा शौहर तेरे घर आ जाएगा, तू मिल जाएगी। जरा जोर से, अब भी नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। शाम को तुम दोनों मिलोगे, शाम को तुम दोनों मिलोगे। नबी ने क्या कहा? कभी नहीं मिल पाएगी, कयामत में मिलेगी। अब ये हैरान अब भी नहीं बता रही है, अब भी नहीं बता रही है कि मैटर क्या है। चुपचाप अपने घर चली आई।
और इंतजार करने लगी शाम का कि शाम हो। शाम का वक्त आया, मगरिब का वक्त आया, दिन डूबा, थोड़ा सा अंधेरा हुआ। इतने में एकाएक क्या देख रही है, इसका शौहर आता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह। घर में दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम, शौहर घर में पहुंच गया। अब ये सलाम के बाद पानी देना तो बहुत दूर है, ये टक 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 ऊपर नीचे देख रही है। नबी का फरमान, अबू बकर का फरमान, ये दोनों टकरा रहे हैं। करे तो क्या करे, बैठा दिया, कहा रुको मैं थोड़ी देर के लिए आ रही हूँ, बारगाह मुस्तफा में जा रही हूँ। वहां से चली आई बारगाह मुस्तफा में। या रसूल अल्लाह, आपने कहा था तेरा शौहर रास्ते में इंतकाल कर जाएगा, अब नहीं वापस आएगा, कयामत में मुलाकात होगी। वो तो घर पहुंच चुका है, मैंने पानी पिलाया है, मेरा शौहर मेरे घर बैठा है। इतना सुनना था। नबी बड़ी हैरत में उस औरत का चेहरा देखने लगे कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। नबी बड़े गौर से ऐसे देख रहे हैं उसका चेहरा, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। तब तक जिब्रील अमी आ गए। सुभान अल्लाह। तब तक जिब्रील आ गए और आकर के बोले, या रसूल अल्लाह, आप हैरत में ना पड़े, होना वही था जो आपने कह दिया था, जो आपकी जबान से निकला था, होना वही था, तकदीर वही थी, लिखा वही था। और आपके कहने के मुताबिक इसका शौहर मर चुका था, मर चुका था। रास्ते में इसे अबू बकर मिल गए, उन्होंने कह दिया शाम तक वापस आ जाएगा। अल्लाह की रहमत को हया आई कि अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है, कभी बात झूठी नहीं हुई, इसलिए जिंदा करके वापस भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी दे के वापस कर दिया है। सुभान अल्लाह। ए नबी, आपकी बात भी ठीक हुई, वो मर चुका था, जिंदगी जो दोबारा मिली है वो अबू बकर के कहने की वजह से सिद्दीक कहा जाता है। अगर ऐसा ना होता तो कल कहा जाता अबू बकर ने ये बात गलत कही, झूठ कहे, और वो झूठ बोल ही नहीं सकते, सच्चा करना था। याद रखिएगा, आज हम एक बात यहीं पे आपको बता दूं, ये क्या नाम है, कुंडा बगल में है। अब मैं कह दूं कि कुंडा में एक आदमी आज दुकान खोले हुए है और बहुत हाई फाई दुकान। किसकी दुकान, मान लो कौनो चीज के, चलो ये काम हुई, कूलर, रोडोकिया बगलिया दाहिने तरफ वो ऐसे अनघड़े, ठीक है ना, दाहिने तरफ वो ऐसे दुकान बहुत बड़ी आज खोल दिया है। अब आप जा करके देखो कहाँ खोल दिया है भाई, अभी तक तो नहीं था, हमने तो देखा नहीं अभी तक। आप गलत तो नहीं बोल रहे हो? तो आपको अगर शक होगा तो आप वहां जाके तस्दीक करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर दुकान खुली है तब आप कहेंगे ये सच बोल रहा है, ठीक, और अगर गलत है तब आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है ना, गोया। अच्छा, और अगर ना खुली हो तब आप हमको झूठा कहेंगे। गोया हमें अगर बोलना है तो तस्दीक पहले करना है कि ये सही है या नहीं सही है, तब सच्चे कहलाएंगे। हम कह दी कि वही मार भवा भाई ने किया हुआ, तब झूठा होंगे कि सच्चे? झूठे होंगे ना। गोया हमें बात कहने से पहले ये देखना पड़ेगा ऐसा है कि नहीं है, तभी तो सच्चा कहलाएंगे। अगर वहां दुकान है तब सच्चे, और अगर नहीं है तो झूठे। अगर लड़ाई हुई है और हमने खबर दिया तब सच्चे, और नहीं तो झूठे। तो याद रखिएगा, हम वो है जो देख करके बोलते हैं कि ये सही है कि नहीं है, और अबू बकर वो है जो बोलते तो मौला सच करके दिखाता है, मौला सच के दिखाता है। जरा देखिए, फर्क समझ में आया जो समझाना चाह रहा था? समझ गए ना? हाँ, वो सच करके मौला ने दिखाया। अल्लाह समझ अता फरमाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जरा मकाम और मर्तबा देखो, शान देखो, इज्जत देखो, अजमत देखो। माल देना हुआ तो हाजिर है, माल देना हुआ तो हाजिर है। वतन की कुर्बानी देनी हुई, बड़ा मशहूर है। हिजरत के मौके पे नबी ने कहा कि आप चलो मेरे साथ चलना है, तो बोले या रसूल अल्लाह तैयार है चलने के लिए, चलिए। कहाँ जाना है? मक्का छोड़ के मदीना चलना है, हिजरत करना है। अच्छा ठीक है, चल दिए। दो जान है, अबू बकर है, जातें दो हैं, ठीक है, जातें दो हैं और दोनों चल रही हैं। रातों रात निकले,
इधर मुहासरा कर लिया गया, मीटिंग हुई कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कत्ल कर दिया जाए, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। दारुन नदवा में मीटिंग की गई, दारुन नदवा में मीटिंग की गई, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम से पढ़ने को कैसे रोका जाए। किसी ने कहा महसूर कर दो, कैद कर दो। तो शेख नजदी आया, शेख नजदी आया वहाँ, और उसके बाद बोला मेरा मशवरा ये है कि हर कबीले का एक एक नौजवान चुना जाए और कत्ल कर दे उनको, रात में सोते हुए वो किससे बदला लेंगे। शेख नजदी दरवाजा जब खटखटाया, बोले कौन? बोले मैं शेख नजदी हूँ। अब मुझे हैरत तो ये है, उसने शेख यमन क्यों नहीं कहा, शेख हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा, शेख अमेरिका अफ्रीका क्यों नहीं कहा, शेख नजदी ही नाम क्यों लिया? क्या हिकमत थी? आला हजरत कहते हैं अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, हम का करी जब तुहार दाद तुहार नहुआ लियत है, हमारी क्या खता है? कहने वाला तो शेख हिंदुस्तान भी कह सकता था, शेख शाम भी कह सकता था, शेख अमेरिका भी कह सकता था, शेख नजदिये का है कहा। अब तुम नजदी हो और वो अपने आप को शेख नजदी कहता है, तो हम लोग क्या करें भैया? आला हजरत कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, मातम तुम करो नजदी तुम हो, तुम्हारा शेख इब्लीस है। आप जरा देखो शेख नजदी बोल रहा है, दरवाजा खुल गया, एक एक नौजवान चुना जाए, नबी के कमरे का मुहासरा किया जाए रात में और उनको कत्ल कर दिया जाए ताकि इस्लाम की बढ़ोतरी रुक जाए, इस्लाम का पढ़ना बंद हो जाए। तारीख के बयान के मुताबिक ये मामला तय हो गया, ये बात तय पा ली गई, एक एक नौजवान चुन लिया गया, रात में नबी के कमरे का मुहासरा किया गया। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, अली इधर आओ, अली करीब आए, ये मेरा बिस्तर है, इस बिस्तर पे सो जाओ, और ये भी जान लो ये कत्ले नबूवत की रात है, कत्ले नबूवत की रात है, इस बिस्तर पे तुम्हें सोना है। अली सो गए, या रसूल अल्लाह तैयार है सोने के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर को बुलाया, आप मेरे साथ चलो। अली नबी के बिस्तर पे सो गए और ये दोनों निकले कमरे से। जरा देखिए कमरे को घेरा गया है, तलवारें चमक रही हैं, ये जैसे निकले तैसे कत्ल कर दिया जाए। नबी ने जमीन से खाक उठाई, उस पर आयत करीमा पढ़ी और पढ़ करके उनके ऊपर ऐसे मारा, और सारे धूल जब उनके ऊपर पड़े तो वो देखते रह गए, नबी उनके सामने से चले गए। सफाई लगी हुई है, आमिना का लाल बीचों बीच से जा रहा है, आंखें खुली हुई है, आंखें देख रही है, मगर आमिना का लाल नहीं दिख रहा है, अबू बकर नहीं दिख रहे हैं, नबी सामने से चले गए। आज ये कहता है अगर तुम्हारे नबी जिंदा है तो कहाँ है, हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, अगर तेरा नबी जिंदा है तो हमें दिखाओ। हम ये जवाब देते हैं जब तुम्हार बप्पा लोग देख ही नहीं पाएंगे तो आप क्या देखोगे? सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी तुम्हारे सामने से गुजरा था, तुम्हारे दादाओं के, तब तो नजर ही नहीं आए, तुम्हारी आंख क्या देखेगी? तू नहीं देख पाएगा, कौन देखेगा? आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, सूरत तेरी। अभी तू क्या देखेगा? जब सामने से गए तब तो देख ही नहीं पाया, आज देखने की बात कर रहा है। कहाँ है? दिखाओ दिखाओ। और इनको कभी नहीं दिखेंगे, क्यों? इसलिए कि जो गर्द नबी ने डाली थी हो सकत है दुई जर्रा इनके अखियों पर गिरा हुए चलाए हुए। दादा से वरासत में तो सब मिलता है ना, तो जब वहां नहीं दिखे तो यहाँ कैसे दिखेंगे? अल्लाह ताला इनके शर से महफूज व मामून फरमाए। मेरे नबी निकल गए, हजरत अली बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, कत्ले नबूवत की रात है। मैंने पूछा ए अली ये बताओ नींद तो नहीं आई होगी? आपको पता था कि आज ऐसा ऐसा मैटर होने वाला है, नींद तो नहीं आई होगी? करवट पे करवट, करवट पे करवट, करवट के करवट। अली बोले कि अल्लाह की इज्जत की कसम आज से अच्छी नींद कभी आई ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज से बेहतर नींद कभी आई। ऐसा कैसे हो सकता है जब पता है कि आज तलवार चलेगी? उसके बाद आदमी चैन की नींद सोए तो बोले सुनो मैं अली हूँ, अली मेरा अकीदा है, ऐसा जाअजुलहुम ला यस्तक़दिमून अस्साअह वला यस्तअखिरून। जब मौत आएगी
موت آके ही रहेगी, ये हमारा ईमान है। और उस मौत पे तो मैं कुर्बान जो बिस्तरे मुस्तफा पे आ जाए, उस मौत का इस्तेक़बाल करते हैं। जरा देखिए, मैं बड़े आराम से सोता रहा। अच्छा, जब कुफ़ार ने देखा, हजरत अली उठे, दरवाजा खोला तो देखे कि अली निकल रहे, तो बोले अच्छा आप नबी कहाँ हैं, आप यहाँ सोए हुए हो, नबी कहाँ है? तो अली मुस्कुराए, बोले रात भर पहरा तू देते रहे हो, हम बताइए नबी कहाँ है? मैं तो सो रहा था आराम से, तलवार लेकर के घेराबंदी तुम किए हुए थे, पहरा मैं बताऊं मैं नबी कहाँ है? तुम जानो कहाँ गए, तुम बताओ। तो बोले हमें नहीं मालूम। बोले ऐसे ही तो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे ही तो गए। जरा देखिए, ये मेरे आका है। बोले क्या आप जाओ ढूंढो कहाँ है। अब वो वहां से निकले, ये अली है, कत्ले नबूवत की रात थी, सो गए हजरत अली, और बोले ऐसी नींद पहले कभी नहीं आई, चैन की नींद सोते रहे। हमने पूछा ए अली, जब वो कत्ले नबूवत की रात थी तो कहीं ना कहीं ये शुबहा जरूर होगा कि ऐसा ना हो नबी के धोखे में हमें मार दिया जाए, जब हम सो जाए, मारने के लिए तो नबी को आए हैं, ऐसा ना हो कहीं नबी के धोखे में सोते हुए में हमें मार दिया जाए। आपको डर नहीं लगा, दिल में दहशत नहीं पैदा हुई? ठीक है, आप अली थे, वो मारने नबी को आए थे, लेकिन गलती से आपको मार बैठते, सोते हुए में चेहरा ना देखते। तब अली बोले मुझे सब पता था कि मैं चाहे जब मर जाऊं वो अलग बात है, मगर आज मुझे मौत नहीं आएगी, आज मुझे मौत नहीं आएगी, आना भी होगा तो मौत रास्ता बदल देगी। हमने कहा वो कैसे? अली ने कहा सुनो, नबी ने जाते हुए ये फरमाया था, ए अली मैं तो जा रहा हूँ, कल ये अमानत है फला फला को दे के तुम भी मदीने चले आना। जरा जोर से सुभान अल्लाह। तो नबी का ये फरमान बता रहा है, अगर आज मैं मार दिया जाता तो मदीना जाता कौन? नबी खाली गए नहीं, जिंदगी का पैगाम दे के गए। मौत आके रुख बदल सकती है, मगर अली तुझे मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये नबी बता के गए हैं, अल्लाह समझ अता फरमाए। अब जरा देखिए, यहाँ का मैटर हो गया, आगे बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, एक गार के पास पहुंचे। हजरत अबू बकर ने कहा कि आप या रसूल अल्लाह रुक जाइए और मैं गार को पहले साफ कर दूं, बड़ा पुराना गार है, कीड़े मकोड़े सांप ये सब होंगे, पहले साफ कर दूं, उसके बाद आप अंदर आइए। नबी रुक गए, ये अंदर जाते हैं, उसको पहले साफ करते हैं। किताबों में लिखा हुआ आप सुन चुके होंगे, अपने कपड़े को फाड़ फाड़ करके सुराखों को बंद किया, साफ किया, एक सुराख पे अपनी एड़ी रख दी। अब एक बात सुनो, मारिज के हवाले से सुनिए, एक बहुत पुराना सा हजरत ईसा के ज़माने में, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, उसके बाद ज़माने फ़तरत होता है, इंटरवल जिसको आप बोलते हो, खाली ज़माने फ़तरत, उसके बाद सरकार आए हैं। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक सांप आया, ऐसे आगे आकर के खड़ा हो गया। बोले क्या बात है, तू काहे रास्ता रोक रहा है? तो सांप ने कहा अल्लाह के नबी, मुझे आपका रास्ता नहीं रोकना है, एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। ईसा ने कहा कौन सा सवाल? बस इतना बता दो कि गारे सौर का रास्ता कौन सा है। जरा जोर से दीवानो सुभान अल्लाह, गारे सौर का रास्ता बता दो। गारे सौर का रास्ता? तू क्या करेगा गारे सौर का रास्ता? यहाँ इतना लंबा, यहाँ कुल तमाम बिल पेड़ दिखाते जाओ, चाहे जहाँ घुसरी जाओ, गारे सौर में जाए कौन जरूरत है? तमाम कुल बिन सुराख और सब मौजूद है, वहां जाने की क्या जरूरत है? गारे सौर का रास्ता क्या करोगे? तब सांप बोला हाय 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 सुभान अल्लाह। सांप ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके बाद आमिना का लाल आएगा तो उसी गार में आएंगे, मैं उनका दीवाना हूँ और मैं जा रहा हूँ ताकि जब भी आए उनके चेहरे का दीदार कर लूं। जरा देखिए, रास्ता ईसा से पूछा जा रहा है, ये नहीं कह रहा है मैं आपका दीवाना, दीवाना आमिना के लाल का हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब
अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। जरा देखिए तो सही, अच्छा उनका दीवाना है इसलिए गारे सौर का रास्ता चाहिए। हाँ बता दीजिए जरा, मेहरबानी होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे चले जाओ, यहाँ जाके यहाँ मुड़ जाना, ऐसे जा करके यहाँ मुड़ जाना, वो उधर घूम जाना, ऐसे ऐसे जाओगे वहाँ पहुँचोगे। एक गार है बड़ा पुराना, उसी को गारे सौर कहते हैं। अपने हिसाब से जो उन्होंने बताया, यूं 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 करके चले जाओ, रास्ता बता दिया। वो सांप चलता रहा गया और गार में जा करके बैठ गया। ईसा का जमाना कितने साल पहले। एक बात ये भी जान लो, सांपों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, हजारों साल की उम्रें बताई जाती है, किसी किसी की हो जाती है, बड़ी लंबी उम्रें होती हैं सांपों की। वो गया सांप और जा करके उसी गारे सौर में बैठा हुआ था तब से। अब अबू बकर सिद्दीक कपड़े को फाड़ रहे हैं और फाड़ करके उसको बंद कर रहे हैं। एक को बंद किया, दूसरे को बंद किया, और सांप ने कई सुराख बना दिया था। इसलिए नहीं कि वो निकले, इसलिए कि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरे से नबी का दीदार हो जाए। रास्ता बना दिया था, सब बंद कर दिया, एक बचा, उस पर अपनी एड़ी रख ली। एड़ी रखने के बाद आवाज दिया, या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ लाइए, या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ लाइए। मेरे नबी गए, हजरत अबू बकर बैठ गए उसी पे एड़ी रख करके। नबी ने उनके गोद में अपने सर को रख दिया और सर को रखने के बाद मेरे आका आराम फरमाने लगे। सांप ने अंदर से कहा, अबू बकर पैर हटा ले, बरसों से कई सौ साल से यहाँ बैठ करके इसी दिन का इंतजार कर रहा था, हटा ले पैर को, आज दीदार का दिन है, पैर को हटा ले, मैं भी देख लूं, मैं भी देख लूं। दीवाने ने कहा, मैं पैर को नहीं हटाऊंगा, कहीं मेरे आका को न डरते। आवाज आई, जैसे तू नबी का दीवाना है वैसे मैं भी नबी का दीवाना हूँ, मैं भी देख लूं। तुम तो वुजू करते हुए देख लेते हो, नमाज पढ़ाते हुए देख लेते हो, तुम तो साथ में चलते हुए देख लेते हो, तुम तो सुबह भी देखते हो, शाम भी देखते हो। कई सौ साल से यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ इसी चेहरे के दीदार के लिए देखने का मौका दे दे। दो आशिकों की लड़ाई है। आशिक ने कहा, नहीं मैं पैर नहीं हटाऊंगा। तब सांप ने कहा, अभी प्यार से समझा रहा था, अब अगर नहीं माना तो अब जो है सख्ती करूंगा। अबू बकर ने कहा, कर ले, हटाऊंगा नहीं। कहा, मैं डस लूंगा। अबू बकर ने कहा, डस ले। सांप ने कहा, जिसे मैं डस लेता हूँ वो पानी मांगने का भी मौका नहीं पाता, इधर डसा उधर वो चला जाता है, इतना जहरीला हूँ। अबू बकर ने कहा, किसको धमकी दे रहा है, किसको धमकी दे रहा है कि डस लूंगा तो पानी नहीं मांगेगा? तुझे पता नहीं है मेरी गोद में वो सो रहा है जिसका आलम ये है, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। किसको धमकी दे रहे हो, किसको धमकी दे रहे हो? जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। तू कहता है पानी नहीं मांगेगा, अरे इनका पैर का धुला हुआ अगर पी लो तो आबे हयात है, वो मौत ही नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझता फरमाए, तुम किसको धमकी दे रहे हो? मैं पैर नहीं हटाऊंगा। तो ठीक है, ना हटाओ तो फिर मैं डसना शुरू करता हूँ। डसो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने सांप ने काटा पैर में, और जब काटा तो जहर फैला, बड़ा पुराना सांप था। तकलीफ ली, आंख से आंसू गिरे, और जब आंसू मोती की तरह निकला तो टप से मुस्तफा के चेहरे पे गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, रहल जानते हैं ना, लकड़ी की रहल जिस पे कुरान रखा जाता है। अच्छा, लकड़ियां तो ये भी है, ये लकड़ी लगी हुई है, हाँ? इसको ठोकते हो पकड़ करके, इसको कोई नहीं चूम रहा है, मगर इसी लकड़ी का रहल बना दिया गया तो सीने से लगा लेते हो, उसको चूम रहे हो। तो जिस रहल पे कुरान रख दिया जाए उसकी इज्जत होने लगती है। ए अबू बकर, आज तेरा गोद, उसका मकाम क्या होगा? उस पे कुरान नहीं, साहिबे कुरान रखा हुआ है, नबी ने अपना सर रख दिया है, उनका तेरे गोद का मकाम क्या होगा? जरा देखिए, हमारे आंसू निकले तो रूमाल में जज्ब हो गए, हमारे आंसू गिरे आस्तीन में जज्ब हो गए, हमारे आंसू गिरे दामन में जज्ब हो गए। अबू बकर का आंसू गिरा तो चेहरे मुस्तफा ने चुन लिया, चेहरे मुस्तफा पे पड़ता है, निगाहे नायत खुली। ए अबू बकर, मायूब की का किसने रुला दिया? काहे रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? लुतुक तो या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ये पैगंबर, मेरे माँ बाप पे कुर्बान
قربان ہوں، میں ڈس لیا گیا میرے آقا، پیر میں کسی نے کاٹ لیا ہے اندر سے، کاٹ لیا ہے اندر سے، ذرا دیکھیے لطف تو یا رسول اللہ میں ڈس لیا گیا، ڈس تو لیے گئے لیکن پیر کو ہلایا نہیں، ولم یتحرک مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کو ہلایا نہیں کہیں مصطفیٰ بیدار نہ ہو جائے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، تکلیف سہتے رہے مگر حرکت نہیں کی، جب آنسو گرے نگاہ عنایت کھلی تب نبی نے پوچھا میٹر کیا ہے، کہے رو رہے ہو، بولے یا رسول اللہ ڈس لیا گیا، تو اس میں رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا پیر ہٹا، کہاں ڈسا ہے، کہا یا رسول اللہ یہاں ڈسا ہے، نبی نے لعاب دہن نکالا اس پہ لگا دیا، بولا اب کیا حال ہے، بولے یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اب اٹھا لیا، میرے آقا نے فرمایا یہ ڈسا نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے، مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ اندازہ فرماؤ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی غار ہے، جب اندر جاتے ہیں میرے نبی اوپر سے مکڑی نے جالا بن دیا، سنا ہے نا، جالا بن دیا، کبوتری نے آ کر کے انڈا بھی دے دیا، اچھا کفار تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، دیکھا تو بولے وہاں تک تو قدم کے نشان پائے جا رہے تھے اور اس کے آگے نہیں پائے جا رہے ہیں، اس کے آگے نہیں پائے جا رہے ہیں، تو بولے یہاں سے گئے کہاں، اگر اس غار میں گئے مان لیجئے تو یہ انڈا پھوٹ گیا ہوتا، یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، یہ تو سلامت ہے، تو پھر گئے کہاں، یہ کھڑے ہو کے وہی بات کر رہے ہیں اور ان کی آواز نیچے ابو بکر سن رہے ہیں، وہ سہم گئے، یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، یہ تو آ گئے، اللہ کی قدرت دیکھو، یہ جو بول رہے ہیں وہ اندر سن رہے ہیں، اندر جو بول رہے ہیں یہ سن ہی نہیں پا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے نبی نے ابو بکر سے کہا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، ایک نے اپنے دوست سے کہا لا تحزن، گھبراتا کیوں ہے، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، یہ بات ہو رہی ہے، یہ سن نہیں پا رہے۔ ایک نے کہا اس کے اندر گئے ہوں گے، تو بولے دکھتا نہیں ہے تم کو، اندر گئے ہوتے تو یہ ٹوٹ گیا ہوتا، انڈا پھوٹ گیا ہوتا۔ میرے آقا کو جب پتا چلا کہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، تو نبی نے دعا کیا اے میرے مولا اس کو حرم کے اندر جگہ عطا فرما دے، حرم بخش دے، آج حرم میں جو کبوتر موجود ہیں یہ انہی کی نسل سے ہے جنہوں نے حفاظت کیا تھا، سبحان اللہ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ذرا دیکھیے میرے آقا نے یہ دعا فرمائی، شواہد النبوہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے تو مدینہ منورہ پہنچے، راستے میں کئی معاملے پیش آئے، سوراقہ آیا تھا پکڑنے کے لیے، زمین میں وہیں دھسا دیا گیا، 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، راستے میں معبد کا ایک خیمہ تھا، وہاں بکریاں چر رہی تھی، اس کے ابو بکر نے کہا ہمارے نبی کو پینے کے لیے کچھ دودھ دے دو، تو کہا یہاں بکریوں میں دودھ نہیں ہے، دودھ کہاں سے تم کو دیا جائے، تو نبی نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہاں تو دودھ تو ہم نکال لیں گے، بولے اگر آپ نکال سکتے ہیں لے لیجئے، نبی نے ہاتھ لگا دیا، ایک کے تھن کو دودھ سے بھر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گرم گرم دودھ نکالا گیا، نبی نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ چلتے ہیں مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ قرآن فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، سرکار کی ولادت کو ان کے وصال تک بیان کیا تھا نا،
सरकार के विशाल हो जाने के बाद अब तारीख को जोड़ दीजिए और इसको सुन लीजिए और जहन में बैठा लीजिए। सरकार के विशाल के बाद लोग अबू उबादा के मकान पर, साद इब्ने उबादा के मकान पर जमा हुए ये मीटिंग करने के लिए कि नबी के बाद खलीफा कौन बनेगा। तो सारे सहाबा जब इकट्ठा हुए तो एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा ए लोगों, आपको मालूम है जब मेरे आका कहीं का किसी को वाली बनाते थे तो एक अंसार में का होता था, एक मुहाजिरीन में का होता था। तो हम चाहते हैं नबी का खलीफा जो बने तो ऐसे ही बने, एक अंसार में का हो, एक मुहाजिरीन में का हो। एक अंसारी और खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। उसके बाद ज़ैद इब्ने साबित खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये लोगों, आप लोगों को मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन में से हैं, इसलिए उनका जो खलीफा होगा वो भी मुहाजिरीन में से होगा। और उसके बाद हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, बोले कि आज से ये तुम्हारे खलीफा है, इनके हाथ पर बैअत कर लो। सब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैअत कर लिया जो मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मजमे पे नजर दौड़ाई तो कहा अली नहीं है, अली को बुलाया जाए। उनकी क्या राय है? हजरत अली को बुलाया गया। अली जब आए, हजरत अबू बकर ने कहा सबने मेरे हाथ पे बैअत कर लिया है, मुझे खलीफा मान लिया है, आप दामाद मुस्तफ़ा हैं, आप जो है इस्लाम को कमज़ोर होने से बचाएंगे। तब हजरत अली ने कहा मैं भी बैअत करता हूँ। और ए अबू बकर, आपको कौन पीछे कर सकता है? जब मेरे आका ने मनिल लज़ी युअख्खिरुका, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ा दिया तो आपको पीछे करने की हिम्मत किस में है? आप ही खलीफा हैं। ये इशारा किस बात की तरफ था जानते हैं आप? जब मेरे नबी बीमार हुए थे, कल मैंने बताया था, तो बीमारी के आलम में कुछ नमाजें हजरत अबू बकर ने पढ़ाई थी। दो शंबे का दिन है और नबी की बीमारी की हालत चल रही है। हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। उसके बाद इधर नमाज हो रही थी, नीयत बांध लिया। मेरे आका ने के जहन में आया कि चलो देखे कि मेरे सहाबा मेरे गैर मौजूदगी में क्या करते हैं। मेरे नबी ने अपने कमरे का पर्दा, हुजरे का पर्दा हटाया और जैसे नबी ने पर्दा हटाया थोड़ा सा बाहर निकले कि देखें, और जैसे नबी का चेहरा देखा तो जितने सहाबी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे सब बजाय किबला के मुड़ गए, ऐसे नबी का चेहरा देखने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नमाज में मुड़ गए, नबी का चेहरा देखने लगे, सब मुस्तफ़ा का चेहरा देखने लगे। आप बोलिए, किबला अगर इधर है और इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, अब नबी का हुजरा चाहे इधर होगा, चाहे इधर होगा, चाहे इधर होगा, तीन में से किसी एक तरफ होगा, ठीक है। और इमाम इधर खड़ा हुआ है, इधर मुंह करके काबा यही है, नमाज पढ़ रहे हैं। अब मुस्तफ़ा ने अगर उधर से पर्दा हटाया तो सहाबा उधर देखने लगे, अगर इधर से पर्दा हटाया तो इधर देखने लगे, और पीछे से पर्दा हटाया तब तो और ज्यादा मामला है, पूरा पलट करके यूं देखने लगे। आप बोलिए, पूरी हालत ही बदल गई। सहाबा देखने लगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन नमाज की हालत में। सिराते मुस्तकीम का मुसन्निफ लिखता है कि नमाज में गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी माज़अल्लाह, मगर आमिना के लाल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। इनसे बता दो वो तेरी इब्लीसी नमाज होगी जो नबी के ख्याल आने से नहीं होगी, गधे के ख्याल से नमाज मुकम्मल होगी। हमारी नमाज तो वही है कि हमारा सर झुकता है रब की बारगाह में और दिल झुकता है मुस्तफा की बारगाह में, दिल झुकता है मुस्तफा की बारगाह में। अल्लाह समझ अता फरमाए। पूरा रुख मोड़ लिया और नमाज बातिल नहीं हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान उठा के देखो, ना मिले तो लाओ, यहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। किसी को अगर ढूंढने से नहीं मिलती है हदीस तो हम तो मिले हुए हैं आए कि हम को भाग गए, हम तो है ना। और ये भी याद रखो, हम भागने वाले नहीं हैं, हम उस दर पे रहने वाले हैं जिसने बहुत पहले कह दिया था सगहूं मैं उमैद रज़वी गौस और रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। वो दरवाजा है जो भागता नहीं, लोग उससे भागा करते हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो
बुखारी में किताबुल अजान में ना मिले तो हम मौजूद हैं, उसके अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्फाज सुनो बुखारी के, जो वर्ड बुखारी के अंदर लिखा हुआ है वो सुनो अरबी का। बुखारी के अंदर अल्फाज ये हैं, सहाबा कहने लगे फहममना अन्नफ्ततना बेरुयती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फहममना अन्नफ्ततना मिनल फरह बेरुयती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ा अरबी जानता है ना, कहते हैं अहले हदीस है, जरा एक बार ये भी अरबी दे, हाँ तब पता चलेगा अरबी कैसी होती है। वो 4 ठू कुल्लो बिदतिन दलाला रट लेने से कोई मुहद्दिस थोड़ा हो जाएगा। बस ये पढ़ा दिया जाए कुल्लो बिदतिन दलाला, कुल्लो बिदतिन दलाला, इससे कोई मुहद्दिस नहीं बन जाएगा। ये देखिए भी बुखारी में मौजूद है। और अरबी का ग्रामर तो तुझे हम बताएंगे, ये आला हजरत के दर का कुत्ता बताएगा। घमंड नहीं है, तू जैसे लोगों के सामने तो सर ऊंचा करना पड़ेगा। आला हजरत के कुत्ते हैं, याद रख। और ये कुत्ता ऐसा है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। अल्लाह समझ अता फरमाए। कुल्लो बिदतिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार। एक से हमने पूछा कि ये बता कुल्लो बिदतिन दलाला मौजबा कुल्लिया है कि जुजिया है? अवघड़ उससे ऐसा लग रहा है जैसे सर के कभी सुनबा ही नहीं किया कि मौजबा कुल्लिया जुजिया क्या होता है। अल्लाह समझ अता फरमाए। हदीस में आया फहममना अन्नफ्ततना बेरुयति मिनल फरह बेरुयति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम करीब था कि फितने में पड़ जाते, नबी के चेहरे के दीदार की वजह से, खुशी की वजह से। फितने में मतलब हम नमाज ही तोड़ बैठते। फितने का मतलब ये है, करीब था कि नबी को देखने में और खुशी में हम नमाज ही तोड़ बैठते। अब बुखारी की एक हदीस और सुन लो और बातों को समझने की कोशिश करो, जहन को जरा तेज कर लीजिए। बुखारी में हजरत आयशा से रिवायत है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कुल्तु या रसूल अल्लाह सअल्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफाते फी सलात। मैंने, हजरत आयशा कहती हैं, मैंने सरकार से नमाज में इल्तिफात के बारे में पूछा कि नमाज में अगर इधर उधर इल्तिफात हो, आप देखते हो इल्तिफात का मतलब नमाज पढ़ो तो यहाँ ताको वहाँ ताको, जहन डिस्टर्ब हो यहाँ वहाँ, होता है ना। अकील भाई इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, 2-3 सफ़े लगी हुई थी, एक जने पीछे साए केरत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक जने पीछे साए कहीं का हो कई रकात नमाज हो गई, दूसरे के जने कहीं जा अभी तो यक्के भवा है। ठीक है ना, यही मेरी नमाज। ऐसे लोग भी इमामत हो रही थी, किरात हो रही थी और बड़ी शान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तब तक जब चूहा दौड़ गए वहीं से। अब जो पहले सब में खड़े हैं पीछे हटने लगा, रे का हो कहीं चूहा हुआ, अरे क्या बात है यार, नमाज पढ़ रहे हो। इन्नल अब्दा युनाजी रब्बहु फिस सलात, बंदा नमाज में अपने मौला से राजो नियाज की बात करता है। ये राजो नियाज की बात है तो हर दिमागवा में है कि चूहा और बिल्ली की तरफ है, भैया क्या करत हो तू, जरा देखिए। इसीलिए यही सब मैटर है। मजनू जा रहा था रास्ते से, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, नमाजी साहब, वो वह नमाजी रहे कि कहीं तोहार काव ना हो, कहीं हाजी अब्दुल रहीम, कहीं तोहार काव ना हो, कहीं नमाजी अब्दुल करीम, कहीं कि ये कौन सा टाइटल है नमाजी अब्दुल करीम, कहीं ना जाने कहाँ से उल्टा पलटा पैसा लाए कि एक बाजी चले गए, हज करके आ गए, तो जब पूछो तो हाजी अब्दुल रहीम, हाजी अब्दुल रहीम, हाजी अब्दुल रहीम। रोज 5 टाइम पढ़ता हूँ तो क्या नमाजी अब्दुल करीम नहीं हो सकता? ये आलत। अब वो उसी में खोए हुए नौनियत वाले नमाज पढ़ रहे थे, मजनू का गुजर हो गए आगे से, वो क्या जाने कौन नमाज पढ़ रहा है, नियत तोड़ी, खींच के 2-3 झापड़ लगाया। अरे तुझे दिखता नहीं है मैं नमाज पढ़ रहा था? नमाज पढ़ रहे थे तो बोले हाँ तुझे दिखता नहीं कैसा आदमी है? बोले कि बस देख लिया ऐसे ही नमाज है, नियत तोड़ के मारा, हाँ नियत तोड़ करके मारा है। बोले मैं किसी के इश्क में इतना दीवाना हुआ कि हमरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ नहीं बिलगाते, बस वही देख रहे, उसी की याद, उसी का तसव्वुर। और तू मौला से बात करता है नमाज में, और तू कैसे जान गयो कि हमारे बस जाई थे?
ये है नमाज। इसीलिए तो बड़ा निहाल हो रहा था, बड़ा निहाल इसीलिए रहते हैं। देखो नमाज में इल्तिफात इधर उधर नहीं होना चाहिए। हजरत आयशा बुखारी की रिवायत है, साल तो अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफात फी सलाह, नमाज में इधर उधर इल्तिफात के बारे में, यहाँ देखना वहाँ देखना, उधर तवज्जो करना उधर तवज्जो करना, इसके बारे में मैंने आका से पूछा। बुखारी में हजरत आयशा कह रही है, नबी ने फरमाया हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान, वो एक वसवसा है जो वसवसा शैतान पैदा करता है, शैतान पैदा करता है। ए मेरे सहाबियों, जब आप जानते थे कि इधर उधर देखना ये वसवसा है, बुखारी में मौजूद है, तो नबी आए तो आप पलट क्यों देखने लगे? आपको उसी तरफ नजर करना चाहिए। आवाज आई, सुनो, इस हदीस का मतलब ये है, दीवार मत देखो, किसी इंसान को मत देखो, किसी और चीज मत देखो, बैल ना देखो, बाप को ना देखो, माँ को ना देखो, बेटे को ना देखो, उसको क्यों ना देखे जो काबे का काबा है। यहाँ नमाज बातिल नहीं होगी, नमाज मुकम्मल हो जाती है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चेहरा फिरेगा काबे से, मगर दूसरे की तरफ चेहरा करोगे तब नमाज में दिक्कत आएगी। और ये तो काबे के काबा है, चाहे उधर करो चाहे इधर करो, बात बराबर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये नबी का मकाम है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान है। ये दोनों चीज़ें आप मुलाहिजा फरमाते हुए चलिए। इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब भी अगर वहाबी को बात समझ में नहीं आती तो बोलो हमारी आपकी क्या गलती है? और मैं तो ये भी कहता हूँ, बुखारी शरीफ अपने घर से लाओ, दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, हमारे मदरसे से मत लाओ। ये तो हमारे लोग कह दोगे कि इनका है, तू अरे घरा जौन धरा हुए वो लाओ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। ये चैलेंज करता हूँ, इसलिए कि तू अल्फाज थोड़ी बदल देगा, हदीस थोड़ी बदल देगा, हदीस तो वही है। और डिस्टर्ब करेगा तो पकड़ा जाएगा, जाएगा कहाँ? अरे तुम इधर उधर करके इनको बेचारों को समझा सकते हो, हमें समझाओगे? अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। हक वही है जो आला हजरत बता के चले गए, हाथ उठा के बोलो, उसी पे कायम रहोगे नहीं कायम रहोगे? मसलक के आला हजरत पे कायम रहना है नहीं रहना है ना? सच्चाई वही है, वहाबी हो, देवबंदी हो, राफजी हो, कादियानी हो, सब गलत है। हक वही है जो मेरे आला हजरत बता के चले गए हैं, सच वही है जो आला हजरत बता के चले गए हैं। और आला हजरत ने यही बताया है कि आप कभी भी रहिए मुस्तफ़ा के याद से खाली मत होइए। नमाज मुकम्मल होगी जब नबी पे दुरूद पढ़ लिया जाए, जब नबी पे दुरूद पढ़ लिया जाए तब नमाज मुकम्मल होगी। और ये कहता है नबी की याद आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। बहरकैफ चलिए, एक बार यही हजरत अबू बकर सिद्दीक है नमाज पढ़ा रहे थे, इतने में मेरे नबी एक कौम में सुलह करने के लिए गए हुए थे, मेरे आका तशरीफ ले आए, और जैसे आए तो अबू बकर पीछे हटने लगे। तो नबी ने कहा कि अबू बकर पढ़ाओ पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। पीछे चले आए वो, और नबी थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जरा देखिए हालत नमाज में इमामत बदल गई, जरा जोर से सुभान अल्लाह। हालत नमाज में इमामत बदल रही है, ये भी बुखारी में, ये भी बुखारी में, ठीक है? फिर कह दूं ये भी बुखारी में है, ये भी बुखारी में है, ये भी बुखारी में है, सुनो और ये भी सुन लो, मैं दिखाऊंगा। मैं शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे आए, ये थोड़ा सा आगे गए, नबी ने नमाज पढ़ाई, इमामत बदली। हालत नमाज में मेरे आका नमाज पढ़ाने लगे। जब सलाम फेरा, मेरे आका ने फरमाया या अबू बकर मा मनाका अन तस्बुता इस अमरतुका। अल्फाज बुखारी के सुनिए, सुभान अल्लाह। ए अबू बकर, किसने आपको रोका जब मैंने कह दिया था पढ़ाओ, मैं कह दिया था कि रहो अपनी जगह पर पढ़ाओ, तो आप पीछे क्यों आ गए? तब अबू बकर ने कितना प्यारा जवाब दिया था, सुनिए। बोले मा काना इब्न अबी कुहाफा
युक़द्दिम अला रसूलिल्लाह, अबू क़हाफ़ा के बेटे के अंदर ये ताकत नहीं है कि रसूलुल्लाह के आगे चला जाए। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के आगे चला जाए। अबू बकर आगे न जा सके, उमर आगे न जा सके, उस्मान आगे न जा सके, अली आगे न जा सके, हजरत तलहा आगे न जा सके, जुबैर आगे न जा सके, कल का सहाबी नबी से आगे न जा सके, तो आज का वहाबी कैसे चला जाएगा? आप खुद फैसला कर लो, कैसे जाएगा? अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये खलीफा बना दिए गए, वही बात कर रहा था ना मैं। 2 साल 2 माह से कुछ जायद उमूर खिलाफत इन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद 7 जुमादल उखरा को इन्होंने गुस्ल फरमाया। उस दिन ठंडी सर्दी ज़्यादा थी जो असर कर गई, बुखार आ गया। 15 दिन तक ये बीमार रहे, अलील रहे, बज़ाहिर उसी के सबब से 15 दिन के बाद ये दुनिया से रुखसत कर गए, इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल से पहले वसीयत कर दिया था, रखोगे कहाँ? तो बोले जहाँ आप कहें। बोले जनाजा वगैरह तैयार करके दरवाज़े मुस्तफ़ा पे ले जाना और कह देना कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये गार का यार मज़ार का भी दोस्त बनना चाहता है, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो अंदर ले जाके रख देना और नहीं तो जन्नतुल बकी में कर देना। फिर ले करके गए, जब इनको नहला धुला करके वहाँ ले जा करके पहुँचे हैं और बात पूरी कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, ये आपका मज़ार का यार जो है, गार का यार मज़ार का भी बनना चाहता है, इजाज़त है? इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे को प्यारे से मिला दो। उसके बाद अंदर ले जाते हैं और नबी के एक तरफ, एक पहलू में मेरे आका को इनको रखा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैजामों के, ताजे सर बनते हैं सयामों के। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब जिंदगी ने वफा किया तो आगे बयान कल होगा। हजरत अबू बकर के ज़माने के बाद हजरत उमर फारूक आज़म की खिलाफत और उनका ज़माना, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर अहले बैत, मैदान करबला, सारी चीज़ें होंगी। अब यहीं पे आप बात ख़त्म की जाती है, 11:30 बज चुके हैं।